host. Now we start with the session, and that is scheduled on understanding blocks in becoming entrepreneurs. And for that, we have with us, close to my heart, Shri Ramandeep Singh Sidhu ji, who has worked with in different capacities with the different organizations ranging from Hindustan Petroleum to Reliance Communication, to Reliance Retail, to a company in IT sector, largest company from Chandigarh, then to a company engaged in the designing of interiors of helicopters and aircrafts. And without taking any much more time, I request Raman sir to be on the dais and briefly introduce in detail about himself and then start with his session. Thank you, sir. Welcome. So, hi friends, my name is Ramandeep Singh Sidhu, and I'm basically a farmer, and accidentally turned into engineering, and accidentally then got married, accidentally had 2 kids, and the only thing that I did with choice is that I have 2 dogs. So they are very close to my heart, and that's a very brief corporate introduction. But other than that, I have worked with Bharat Petroleum. I have worked with Reliance Telecom, Reliance Retail, and to name these few companies, so that you understand that the background that I come from and the kind of value I can share today. So I am here today on the request of NITTTR team, and I have prepared a nice presentation so that you can get a fair idea of what entrepreneurship is all about. And I hope that you benefit from my presentation. Towards the end of it, if there are any questions, you can definitely ask me. So, shall we begin then? But before you start paying attention to my presentation, you have to understand one thing, that हमारा देश ना, अगर आप उसको कंपेयर करो अमेरिका और यूरोप से और ब्रिटिश से और स्मार्ट कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से एंड these European countries also, then you realize that we are about 50, 60, 100 years behind them. And इसमें कोई डिबेट नहीं है. You can't debate this because that is the reality. कुछ बिल्कुल सफेद चीजें जो हमारी लाइफ में सामने सामने होती हैं, वो उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते. उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम लोग हर एक चीज को ना चलता है होता है एटीट्यूड से लेते हैं. अब जैसे इट इज वेरी कॉमन सेंसिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट द एक्सटर्नल स्पीकर्स हु कम आर नॉट योर प्रोफेसर्स, दे आर नॉट योर एम्प्लॉयर्स, दे आर इनफैक्ट एम्प्लॉयर्स होते तो आप 2 मिनट पहले आ जाते. So they are not free people. So it is my request that anybody external who comes for these seminars, you should be prepared well in advance, and so that there is less embarrassment to the person who is organizing it. And with that, I want to end this conversation. So going back to my presentation on entrepreneurship, it's very very important to understand what is an entrepreneur. आप लोग ये शब्द बहुत सुनते हो, एंड इसमें गवर्नमेंट भी बहुत रिपीट करती है, मोदी जी भी बोलते हैं इसके बारे में बहुत, और लोकल लेवल पे इसकी बहुत चर्चा होती है. स्कूल कॉलेजेस में आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत डिस्कशंस होती हैं, बहुत एक्टिविटीज होती हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये चीज ऊपर जा रही है, इस पे आने वाले 1-2 सालों में एक सब्जेक्ट बन जाएगा ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, विच विल बी टॉट इन द स्कूल्स, एंड विच आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लोगों को हमेशा फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो फेसबुक से उठा ली या किसी दोस्त से सुन लिया या कहीं अखबार में पढ़ लिया. बट जो जेन्युइन प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज है, वो आपको किसी एंटरप्रेन्योर से या किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म से मिल सकती है. सो मेरा ये मानना है कि मैंने थोड़ी स्मार्ट प्रेजेंटेशन बनाई है अपनी तरफ से, और अक्सर मेरे साथ होता है ऐसा है कि मैं जब अपनी तरफ से कुछ स्मार्ट करता हूँ तो मेरी वाइफ को लगता है कि वो बिल्कुल भी स्मार्ट चीज नहीं है. तो जब मैंने अपनी वाइफ को ये प्रेजेंटेशन सुबह दिखाई कि आई एम गोइंग टू मेक दिस प्रेजेंटेशन, सो शी वाज वेरी वेरी डिप्रेस्ड. शी सेज कि ये करोगे प्रेजेंटेशन और ये कपड़े पहन के जाओगे. सो वो प्रोटोकॉल्स ब्रेक करने बड़े जरूरी हैं. सो आई टोल्ड हर, एंड माय फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दैट इज हाउ आई एम. So the most important thing that you have to understand about entrepreneurship is that you don't have to change at all. आप लोगों की जो एग्जिस्टिंग पर्सनालिटीज हैं उनमें कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं. अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान लेते हैं तो उस एरिया में आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो. Now this is an example, and इससे you will help it will help you understand what is an entrepreneur, what is entrepreneurship, what is the mind of an entrepreneur.
अब इसके पीछे बड़ी छोटी सी स्टोरी है कि एक आदमी, एवरेज आदमी अपना एक स्टोर खोल देता है और वो ग्रोसरी स्टोर होता है, तो वहां पे काफी लोग आते हैं उस गांव के, उस लोकल शहर के, वो कस्बा होता है वहां के, सारे लोग वहां जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वहां डेवलपमेंट आती है। तो डेवलपमेंट होती है तो क्या होता है कि उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में दो स्टोर्स बिल्कुल सिमिलर खोल देते हैं लोग। तो एक स्टोर के ऊपर लिख देते हैं बिग डिस्काउंट्स, तो जितने भी डिस्काउंट वाले मिडिल क्लास हमारे जैसे लोग होते हैं वो सारे उधर चले जाते हैं। और राइट साइड में लिख देते हैं बेस्ट क्वालिटी। सेम स्टोर, दो स्टोर खोल देते हैं वो, एक उसके लेफ्ट में एक उसके राइट में, और एक आदमी लिख देता है बेस्ट क्वालिटी। जो जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग होते हैं वो उधर जाना शुरू कर देते हैं, तो जो उसकी पूरी की पूरी फुटफॉल होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है कि मिडिल क्लास उधर जा रहा है बिग डिस्काउंट्स लाइक बिग बाजार एंड मेट्रो, एंड जो बेस्ट क्वालिटी है, जो थोड़ी एक्सपेंसिव और एग्जॉटिक आइटम्स हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं। तो अब ये बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, इसका बिजनेस बंद होने की कगार पे आता है, और ये एक दिन बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, और रात को इसको एक आइडिया आता है। अगले दिन ये क्या करता है, अगले दिन ये अपने स्टोर के ऊपर लिख देते हैं मेन एंट्रेंस। तो बेसिकली क्या है कि आपने कुछ, हम लोग बड़ा सुनते हैं कि यार दुनिया बदलनी है, देश बदलना है। मुझे लगता है कि अपनी सोच को बदलो, और बड़ी सिंपल सिंपल चीजें अगर आप करो तो लाइफ में आपको बड़ा विजिबल डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस, it is a state of mind, it is about how you think, how you tackle situations, how you get inspired by certain situations in life. अब अगर कोई आम आदमी होता तो वो अपनी दुकान बंद करके या तो इनको बोलता कि टेक ओवर कर लो, या राइट साइड वालों को बोलता कि मुझे टेक ओवर कर लो, लेकिन इसने वहां पे मेन एंट्रेंस लिख दी तो सारी फुटफॉल इसके पास शुरू हो गई। सो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके आसपास प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज कहां पे हैं। Now, I'll straight away come to the challenges of entrepreneurship, और हमारे सोसाइटी में जो नॉर्मल लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो किस तरह के चैलेंजेस हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप अगर अपनी लाइफ में एजुकेशन को लेके, मैट्रिमनी को लेके, बच्चों को लेके और सोसाइटी को लेके अगर आप नॉर्मल लाइफ में चैलेंजेस जो हर एक आदमी को फेस करने पड़ते हैं, एंड हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उस तरह के चैलेंजेस हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारी सोशल वैल्यूज हैं वे दे आर आउटडेटेड। वो जो बहुत पुरानी रीति चली आ रही है वो चेंज नहीं हुई, एंड सेम इज बीइंग टॉट अनफॉर्चुनेटली बाय आवर पेरेंट्स एंड आवर टीचर्स एंड आवर सोसाइटी। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स जो हमें सारी चीजें सिखाते हैं वो आउटडेटेड हैं और वो बकवास हैं। इस चीज को मैं अभी करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार कोई आदमी गलत समझ सकता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम और सोशल वैल्यूज हैं वो काफी आउटडेट हो चुकी हैं। सो इन चीजों को ओवरहॉल करने की जरूरत है। इसको मैं एलैबोरेट करके आपको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है हु रिकॉग्नाइजेस अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड ऑर्गेनाइजेस, मैनेजेस एंड अज्यूम्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस। आप सब लोग टीवी देखते हैं, तो बिकॉज हम इसको इंटरैक्टिव नहीं कर सकते इतना ज्यादा सेशन को, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा। आजकल टीवी में एक ऐड आ रही है जिसमें एक आदमी दो मोटरसाइकिल्स के एग्जाम्पल देता है और उनके पीछे वो डॉल बिठा देता है। तो वो कहता है कि देखो जी, एक डॉल के तो कच्चे उड़ गए और दूसरी डॉल जो है वो हिलती 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 आराम से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे हैव आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज व्हाट। आप देखें कि आधे से ज्यादा हमारा कंट्री जो है वो मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स पे रहता है, राइट। एंड हालांकि कार्स भी हैं लोगों के पास और बाकी साधन भी हैं ट्रांसपोर्ट के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट मोस्टली जो इंडियन कम्युनिटी है, बिकॉज उसको मैन्यूवर करना आसान होता है और मोटरसाइकिल में खर्चा भी कम होता है, तो वो मोटरसाइकिल यूज करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, मार्केट तक जाने के लिए। तो मोटरसाइकिल्स में जो शॉक एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो पिछले कुछ सालों से, डेकेड से ये देखा जा रहा है कि उसकी शॉक एब्जॉर्बिंग पावर जो है वो बहुत रिड्यूस की जा सकती है, लेकिन हो नहीं रही थी। तो क्या होता है कि मोटरसाइकिल पे आपको झटके लगते थे, आपके शॉकर्स एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शॉक को बर्दाश्त करते थे, लेकिन इस कंपनी ने, जो भी कंपनी वो ऐड दे रही है, उन्होंने उस चीज को स्टडी किया, उसको रिसर्च किया, एंड दे हैव नाउ रियलाइज कि उसके शॉक्स को हम लोग बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं।
तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट इट इज अबाउट रियलाइजिंग दैट आपकी सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप डील कर सकते हो, उसका सोल्यूशन निकालना है और उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाना, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. Now, today's topic is about everybody wants to do business. जो ऑडियंस बैठे हैं मेरे सामने और सेंटर्स में और जिन लोगों को आप रोजमर्रा अपनी लाइफ में मिलते हैं, हर एक आदमी की एक इच्छा होती है कि मैं बिजनेस करूं. हर एक आदमी को लगता है कि बिजनेसमैन की लाइफ अच्छी होती है, बिजनेसमैन को लगता है कि एम्प्लॉय की लाइफ अच्छी होती है. तो ये बड़ी फनी डिस्कशन होती है जब एक बिजनेसमैन और एक एम्प्लॉय मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं. तो वो डिस्कशन आपको विटनेस करनी चाहिए. वो दोनों अपनी अपनी टेरिटरीज को कोस रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हर एक आदमी इंडिया में बिजनेस करना चाहता है. somebody wants to start up a IT company, somebody wants to start a social entrepreneurship. कोई अगर आप सोशल कॉज को एड्रेस करते हो, कोई कुछ करना चाहता है, कोई एजुकेशन में अपना बिजनेस चलाना चाहता है. तो इन चीजों को देखते हुए entrepreneurship is upcoming and many colleges and universities these days by the way have a entrepreneur development cell. तो वहां पे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को लाके उसको अपॉइंट करते हैं जो उन कॉलेज के अपकमिंग यंग बडिंग इंजीनियर्स को एडवाइस देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे. नाउ दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्यों सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते बिजनेस में, इसका बड़ा एक स्टडी करके एक एनालिसिस किया गया है. So these are the following points. If you can see on your screen, you can read them also, but I'll read them out for you. Lack of political savvy. आप जहां पे बिजनेस करना चाहते हैं उस जगह की, उस रीजन की, उस स्टेट की, उस कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम को जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक वहां बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है. लैक ऑफ टाइम क्राइसिस मैनेजमेंट. काफी बिजनेसेस में शुरू में बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है. जो सीईओ बाद में बनते हैं लेकिन उनकी शुरुआत अगर आप देखें तो वो डोर टू डोर से भी शुरू होती है. इसी तरह बहुत सारे क्राइसिस सिचुएशंस आते हैं बिजनेसेस में जिनको हैंडल करना हर एक के बस की बात नहीं होती है. लैक ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर इनोवेशन. हमारा कंट्री ऐसा है कि अगर आप एंड प्लीज अंडरस्टैंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट आवर कंट्री, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज आर थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड कि इस देश में अगर आप कुछ नया करके दिखाने की कोशिश करोगे ना, कुछ साल पहले तक तो ऐसा ही होता था, तो आपको बिठा दिया जाता है, आपको बेवकूफ समझा जाता है, आपको हंसी बनाई जाती है आपकी, और आपको क्वेश्चन किया जाता है. तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है इनोवेशन का, लेकिन आपको पनिशमेंट मिलती है इनोवेशन करने की. सो दैट इज वाई आप देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में खासकर लोग जब इनोवेशन करने की बात करते हैं तो वो अपने आइडिया को ज्यादा नॉइज नहीं बनाते उसकी, वो उसको चुप रहते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं. बिकॉज प्राइवेट कंपनीज में इनोवेशन को फिर अप्रिशिएट किया जाता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में इनोवेशन इज नॉट दैट मच अप्रिशिएटेड. So innovation is something which should be valued if you want to become an entrepreneur. Lack of good financial proposals. I have been a part to many conferences of entrepreneur development और हम एक ऐसे इनिशिएटिव का मैं एक हिस्सा बना था जिसमें हम लोग कॉलेजेस में जाके बच्चों से पूछते थे कि वो किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं. अब हमने उस दौरान अपनी जर्नी में देखा है कि बच्चों के पास कुछ बहुत ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं. तो हम लोग ये करते थे कि हम लोग बच्चों को आइडिया पिच करने के लिए बोलते थे और उनमें से जो आइडिया सिलेक्ट होते थे उनको हम लोग फंड भी करते थे. तो हमने अपनी जर्नी में ये देखा कि गुड आइडियाज आर एम्पल. अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, या आस पड़ोस में छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे वो आपको ऐसे वंडरफुल आइडियाज दे सकते हैं जिनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट उसका लैक ये है कि देर इज नो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द नंबर ऑफ गेम वर्क्स एंड व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इनकम, आपका प्रोजेक्टेड ब्रेक इवन टाइम क्या है, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. लैक ऑफ पीपल डेवलपमेंट स्किल्स. 4 लोग जब उनका मन एक तरह का होता है तो वो बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए पीपल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लैक ऑफ लेजिटिमेसी. मैंने ये पर्सनली विटनेस किया है कि एक आदमी, मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने अपना बुक्स का एक बिजनेस शुरू किया जो बहुत सक्सेसफुल हो गया. उनका बिजनेस प्रोपोजिशन ये था कि जो वॉल्वो और बड़ी बड़ी जो लग्जरी बसेस हैं इनमें जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको कंपेनियनशिप के लिए, जो लोग अकेले ट्रैवल करते हैं उनको बुक्स मिलनी चाहिए. तो उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिसपे लोगों को बुक सप्लाई शुरू कर दी उन्होंने करनी. एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने उसका आइडिया जब देखा तो उन्होंने उसको सू करके उस कंपनी को बंद करवा दिया. क्यों? क्योंकि उस बंदे की जो प्रॉपर पेपर वर्क था वो हुआ नहीं था.
So lack of legitimacy is one reason why a lot of startups, they close. लैक ऑफ सीड कैपिटल. सीड कैपिटल वो होती है जो आप एक बिजनेस शुरू करने से पहले आप जो कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड अ सीड कैपिटल. लैक ऑफ अ स्पॉन्सर. और होता क्या है इसमें, ये देखा गया है कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उनकी जनरली बैकग्राउंड जो होती है, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो एम्प्लॉइज होते हैं, दे आर एम्प्लॉइज. एंड टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है जब एक बिजनेसमैन एक एम्प्लॉय से जाके सलाह लेता है. लैक ऑफ अ स्पॉन्सर. नॉर्मली आप लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप एक स्टार्टअप हो, आप अभी अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है. लैक ऑफ एनर्जी एंड शेयर्ड एंथुसियाज्म. कई बार क्या होता है कि एक आइडिया को लेके आप बहुत एक्साइटेड होते हो लेकिन बाकी लोग उस आइडिया को लेके इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं, और वो जो लैक ऑफ एनर्जी एंड शेयर्ड एंथुसियाज्म है वो कम होता है, इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप बिकम्स मोर चैलेंजिंग. These are ways you can overcome obstacles and limitations. You can build social capital. Please remember कि जो भी बिजनेस आप बनाओगे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, चाहे वो बोइंग ने बनाया है, चाहे वो अंबानीज ने बनाया है, वो बिजनेस पैसे से बाद में बना है, पहले उसमें लोग जुड़े हैं. तो जब तक आपकी सोशल कैपिटल कम है आप एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना सकते. लेजिटिमेसी, जैसे मैंने पहले बताया कि पेपर वर्क होना इसका बहुत जरूरी है. आप उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हैं. अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है तो आप उसको इंटरनेट पे जाके वैलिडेट कर सकते हैं. पॉलिटिकल टैक्टिक्स, ये भी पहले टच कर चुके हैं कि आपको पॉलिटिकल जो नॉलेज है अपने एरिया की वो होनी बहुत जरूरी है. एंड वेल दैट इज इट. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन. इसके पहले जो प्रेजेंटेशन थी वो काफी थ्योरेटिकल थी कि इन थ्योरी इफ यू वांट टू सक्सीड व्हाट यू शुड डू, बट हर एक चीज के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं. एंड दिस इज माय फेवरेट पार्ट एंड आई वुड वांट यू टू पे मोर अटेंशन टू दिस पार्ट. इज दैट देयर आर सर्टेन रिकमेंडेशंस दैट आई हैव. मेरी अपनी कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस भी हैं. तो मैं जिस भी कॉलेज में जाता हूँ, जिस भी टीचर से मिलता हूँ, तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है वो थ्योरेटिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है. थ्योरेटिकली आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े डिग्रीज होती हैं लोगों के पास, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो दूध वाले से जब बात करेंगे तो आपको उनकी सोशल स्किल्स बहुत पुअर दिखती हैं. नाउ थ्योरी एंड रियलिटी को हम लोग टच करेंगे इन जस्ट 2 minutes, बट दीज आर सम रिकमेंडेशंस. आई एम श्योर नॉट मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस रिच डैड पुअर डैड. दिस इज अ वेरी वेरी बेस्ट सेलिंग बुक, और हर एक एंटरप्रेन्योर को ये बुक पढ़नी बहुत जरूरी है. जिस आदमी ने ये बुक नहीं पढ़ी है उसका एंटरप्रेन्योर बनना या उसको सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. मुझे लगता है दिस इज अ गाइड, दिस इज द फर्स्ट बेसिक बुक दैट यू शुड रीड इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. एक और चीज अगर आप नोट करेंगे वो ये कि हमारे स्कूलों में ये चारों में से कोई चीज सिखाई नहीं जाती. हमारे स्कूलों में एजुकेशन बहुत सिखाई जाती है लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं सिखाई जाती. तो क्या होता है कि जब लोग 30, 35, 40 साल के होते हैं तो उनकी लाइफ में एक मिड लाइफ क्राइसिस आता है, जब उन्हें पता लगता है कि यार ये 15 साल से जो मैं कर रहा हूं, ना तो मेरे पास टाइम है ना मेरे पास पैसा है. और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि आजकल मेरी भी सिचुएशन कुछ इसी तरह के फेज से निकल रहा हूं मैं. तो वो रियलाइजेशन जब आपको होती है तो आपको ये पता लगता है कि फाइनेंशियली मैंने कोई प्लानिंग की नहीं अपनी लाइफ में. LIC के 2 प्लान लिए और अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया छोटा मोटा, लेकिन वो पैसा आपको उस तरह से रिटर्न नहीं देता है. सो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आई थिंक हाईली रिकमेंड it is a subject which should be a part of curriculum, and some industrial people should come and teach this subject. फैमिली वैल्यूज, ये भी एक ऐसी चीज है जो हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, विच इज वाई यू सी कि हमारी फैमिली वैल्यूज और सोशल वैल्यूज जो हैं वो बहुत पिछड़ चुकी हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक ऐसी अंडररेटेड टर्म है जिसके बारे में लोगों को फिर कुछ नहीं पता. इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो स्वच्छ भारत अभियान है या बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस तरह के जो अभियान होते हैं, दीज कम अंडर ए पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंट्री. तो आप अपनी सोसाइटी की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के उस पर आप काम कर सकते हो. देन दिस इज सबसे ज्यादा जो एजुकेशन देनी हमारे स्कूलों में चाहिए वो है सेक्स एजुकेशन. इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा कल्चर बाकी कल्चर से बहुत पीछे है, बिकॉज 15-20 साल तक तो लोगों को यही नहीं पता होता कि इसके आगे क्या. Now,
I have, in my experience, I have done some research, and मेरा ये मानना है, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, तो हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, बट मैंने बहुत सोचने के बाद इन चीजों को यहाँ पे डाला है कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे कल्चर में है वो ये है कि हमारा जो लाइव्स हैं वो थियोरेटिकली हम लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, बट प्रैक्टिकली वी आर वेरी वेरी पुअर पीपल. थ्योरी में हमारे पास बहुत नॉलेज है, बट प्रैक्टिकली we are not that wise. Now I have taken out some examples, and through which I want to show you how theoretically we are very very backward, very forward, and practically how we are lagging behind in the Western countries. These are the things that are taught to us while we are in the school, in the society, in colleges. हमारे parents, society, peer level हमें सब यही चीजें बताते हैं. The first theory is that marriages are supposed to last forever. यही सुन के हम बड़े हैं, यही शाहरुख खान भी बोलता है, यही कॉलेज में बताया जाता है, यही सारी लव मूवीज में बताया जाता है कि शादियां जो होती हैं वो सिर्फ एक बार होती हैं. बट इफ यू गो टू द रियलिटी ऑफ दिस ना, द रियलिटी इज दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवोर्स रेट्स आर इन इंडिया. इन इंडिया यू विल सी दैट आप अपने अपने घरों में अगर देखें तो आपको एक लेवल, दो लेवल नीचे कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिसका कोई मैट्रिमनी डिस्प्यूट चल रहा है फॉर सम रीजन और द अदर. The second theory that we are taught in our life is that India is shining. India shining की एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत पुरानी है, बीजेपी के टाइम से चल रही है, 1991 से ही शुरू हुआ था, और हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि इंडिया इज शाइनिंग, एंड इसके ऊपर कैंपेन बहुत बड़ी चली थी. बट अगर आप रियलिटी देखेंगे तो आवर कंट्री, one of the reasons why we lag behind is that there are so many scams and corruptions and poverty and rapes in this country. The third theory with which we grow, हम जिसको पढ़ते पढ़ते और जिसको समझते समझते हम लोग बड़े होते हैं, is that knowledge gives you power. अब इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं और जितने फैकल्टी भी बैठे हैं, सबको यही बताया गया कि पढ़ोगे तो लाइफ अच्छी बनेगी, नहीं पढ़ोगे तो बस चलाओगे, रेडी लगाओगे. और आज आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कई लोग जो बाहर जाके ट्रैक्टर चलाते हैं, बस चलाते हैं, जो यहाँ पे रेडियो से उठ के जिन्होंने अपने फूड जॉइंट्स खोल लिए, वो शायद आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमें सिखाया जाता है कि नॉलेज से आपको एम्पावरमेंट मिलती है. आज से 2 साल पहले जब इलेक्शन हुए तो वही आपके पेरेंट्स जो आपको कहते थे कि पढ़ो बेटा पढ़ो, उनके पास 2 ऑप्शंस थी, एक वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एजुकेटेड पॉलिटिशियन और एक वर्ल्ड का सबसे अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन. लुक एट द चॉइस योर पेरेंट्स मेड, एंड दे आर द सेम पेरेंट्स हु टेल यू टू स्टडी. So theory is that knowledge gives you power. Reality is that educated class in India, and that includes all my audience and me in fact, is that educated class in India is the most hopeless, frustrated and powerless class. हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे we have no hopes and we are the most frustrated class in the country. आप देखेंगे आपकी जो काम वाली बाई है या आपका गाड़ी धोने वाला जो बंदा है या आपका जो आपके घर के बाहर रेडी वाला आता है, they are more happy in general than we are. We have so many frustrations and tensions and hopelessness. Now this is one theory that has been taught to all of us right from our childhood, that God will come and save us from all the miseries of life. Whereas the reality is that you go to any भगवान की किसी भी जगह पे जाते हो आप, so this is what you get. This is what you get. So you realize when you want to be an entrepreneur, when you want to start a business, you realize that the biggest challenges within us. हमारे लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है. I don't know how many of you know about the Startup India campaign, Make in India campaign. This is a very very large scale business promotion campaign. और अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया हो तो आप इस कैंपेन का हिस्सा बनके लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं. मिलियंस एंड बिलियंस you can make only if you understand the system. Many of you would give up because it requires a lot of effort.
आपको काफी एफर्ट लगेगा, आपको काफी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. और so the biggest challenge is within. So you have to rethink what to teach. आपके जो करिकुलम्स हैं, बच्चों को और फैकल्टी को ये मेरा क्वेश्चन होगा कि अगर आप लोग अपनी बुक्स को देखें तो पिछले 35 सालों से आपकी बुक्स चेंज ही नहीं हुई. बट आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री चेंज हुई है कि नहीं हुई है? व्हाट्स अप? एनीथिंग यू वांट टू से? Yeah, so industry is changing every day, but the curriculums, the social values, the things that we teach to our students in the engineering colleges have not changed. These are few examples of very successful businesses that started with very modest beginning, very humble beginnings, but have now become multi-million-dollar businesses. The biggest example that you can think of is the Dabbawalas in Bombay. If you are not aware of these businesses, you can always go back to your houses and you can Google about these companies. Dabbawala is a company started by an engineer who supplies tiffin boxes to people who like to eat their tiffin hot. आप जब घर से टिफिन लेके जाते हैं तो जब तक खाने का टाइम आता है वो टिफिन ठंडा हो जाता है. तो ये एक इंजीनियर की कंपनी है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया जो आपके टिफिन को बिल्कुल गर्म ही आपके पास पहुंचाते हैं. सो नाउ दिस इज अ multi-million-dollar कंपनी. चैरिटी वाटर इज अनदर एग्जांपल. हाउस जॉय इज अ कंपनी जो आपको मैसेजेस भेजती है कि अगर आपने अपने घर में कारपेट क्लीनिंग करानी है. और ये कंपनी दिस इज अ स्टार्टअप ऑफ अ गाय हु इज इन 10th क्लास. तो अगर आपने अपनी कार को ड्राई क्लीन कराना है, अपनी छत को ड्राई क्लीन कराना है, अपने कालीन को ड्राई क्लीन कराना है, अपने सोफे ड्राई क्लीन कराने हैं, अपनी टैंक को, आपने पानी वाले टैंक को क्लीन कराना है, तो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड यू प्लम्बर्स एंड कारपेंटर्स एंड दिस इज ओनली अ 10th स्टैंडर्ड गाय हु हैज डन इट. फास्ट पेस इज अनदर कंपनी. छोटी सी आशा इज अ ग्रुप ऑफ women who got together and who are designing corporate gifts. कॉर्पोरेट में जब आप जाते हैं तो एनुअल गिफ्ट्स मिलती हैं. तो ये एक ग्रुप ऑफ लेडीज है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं जिन्होंने ये कंपनी शुरू की है. अपसाइकल शूज इज अनदर कंपनी. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. एक लड़की है जो ये कंपनी चलाती है, जो क्या करती है कि आपके घरों में जितने भी शूज हैं जो आप पहनते नहीं हैं लेकिन वो फटीचर हालत में नहीं हैं, उनको आपसे बोरो किया जाता है, उनको रिसाइकल किया जाता है और उनको एक सर्टेन बेसिक कॉस्ट पे निकाला जाता है. एंड दिस कंपनी इज आल्सो अगेन crores, doing a turnover of crores. So what I'm trying to imply here is that, you know, business is about an idea. Business is about your intent. आप देखेंगे कि अगर 100 स्टार्टअप शुरू होते हैं इस कंट्री में तो एवरेज लाइफ ऑफ अ स्टार्टअप इज अबाउट 18 months. 18 महीने के बाद वो कंपनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है. ये वो कंपनियां हैं जिनके पास पेशेंस थी, परसिस्टेंस थी, जिन्होंने अपने आइडिया में बिलीव किया और जिन्होंने आगे बढ़ के अपने आइडिया को एग्जीक्यूट किया. Now this, if you ask me, is the most important and मेरी सारी presentation इसी slide में summarize हो सकती है. Is that all the people in the world are divided in 4 quadrants. अगर आप लोग वो Rich Dad Poor Dad book पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये theory मिल जाएगी. And this is what happens in reality also, that all the population of the world is divided into 4 quadrants. The E stands for an employee, the B stands for business owner, S is self-employed and I is investor. Now आप लोग assume कर सकते हैं कि आप लोग इस टाइम, हम लोग सब लोग E कैटेगरी में आते हैं. We are employees. So अगर आप टाइम एंड मनी के फंक्शन पे इस चीज को अगर आप मेजर करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी वो होती है जिसके पास ना टाइम होता है ना पैसा होता है जनरली इन लाइफ. और जब वो टाइम और पैसा आपके पास आता है तब आपकी जो करियर होता है वो आपकी उम्र होती है 60 साल की और आपकी रिटायरमेंट एज पास आ जाती है. लेकिन थ्रू योर करियर यू विल रियलाइज कि टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है. हर एक चीज के लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड इज बेसिकली एन एम्प्लॉय जो अपने आप को खुद ही एम्प्लॉय कर लेता है. वो किसी और के लिए काम नहीं करता, वो अपने लिए खुद काम करता है. तो सेल्फ एम्प्लॉयड के एग्जांपल्स हो गए जैसे दुकान वाले हो गए, डेंटिस्ट हो गए, लॉयर हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए. वो किसी और के लिए काम नहीं करते हैं, वो खुद के लिए करते हैं. बट उनके पास प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास पैसा तो शायद हो बट टाइम बिल्कुल नहीं होता. Now the third and the fourth category is that of a business owner and investor. Eventually अगर आप लोग
एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे तो यू वुड वांट टू गो इनटू द कैटेगरी ऑफ B&I। और बिजनेस कैटेगरी वो लोगों की होती है जिसमें टाइम भी होता है और पैसा भी होता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि बिजनेस ओनर ऑलवेज हैज अ सिस्टम। जैसे सुब्रता रॉय हैं, विजय माल्या हैं, ये बड़े बड़े सक्सेसफुल अंबानीज हैं, टाटाज हैं, मित्तल्स हैं, ये लोग जो बिजनेस करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये 9 से 5 ही ड्यूटीज करते हैं? जब ये काम करते हैं तो मेरे ख्याल से ये 12-12, 18-18 घंटे काम करते हैं। बट साल में जब ये वेकेशन लेते हैं 6 महीने की या 4 महीने की, तो क्या इनकी कंपनीज बंद हो जाती हैं? ऐसा नहीं होता है। वाई? बिकॉज दे हैव अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर देम। इन्वेस्टर वो होता है जो बिजनेस में से बहुत सारे पैसे कमा के दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। So slowly the journey of an entrepreneur is from E to S, from S to B and B to I. So till here, you know, I have tried and made my efforts to explain you what is the journey of an entrepreneur, what are the challenges that you will face. I would want to make this an open session, and you know, if you have a business idea, कभी ना कभी हर एक आदमी को कोई ना कोई business idea जरूर strike करता है और काफी देर तक वो आइडिया उसके पास रहता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी कभी ना कभी कोई बिजनेस आइडिया जरूर स्ट्राइक किया होगा, जब आपने सोचा होगा कि अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा और उसके बाद इतने पैसे मैं कमा सकता हूँ। लेकिन वो आइडिया या तो आपकी इंटेंट नहीं होगी, या फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, या फिर सोसाइटी ने आपको ये फील कराया होगा कि इस आइडिया में दम नहीं है। और आपको कुछ सालों के बाद ये देखने को मिलता है कि वो जो आइडिया मुझे 10th क्लास में आया था, अब जब मैं नौकरी कर रहा हूँ 30 साल का होके, तो वो किसी यंग बंदे ने वो आइडिया उठा के उस पर करोड़ों रुपए कमा भी लिए। सो इस तरह के सेशंस, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सेशंस की मीनिंगफुलनेस तब बढ़ती है जब ये सेशंस इंटरैक्टिव होते हैं। ICT mode में the sessions are mostly like a monologue where one person has to speak because of constraint of time and constraint of interactive ability in the ICT mode. But I would still want to say that if people have any questions, that will be more interesting for me to answer, and you know, that will be more meaningful and beneficial for the participants also. So I would just want to ask you, if you have written down any question, if you have understood what I say, if you have an idea, if you want to go about it, if you want to see how to fund my idea, how to go about building my business, then I'm here and you can ask me any questions that you may have. Any questions from this? Or you know what, you can take a time because I have asked you for questions, so you can take a 5-minute halt here. In the meanwhile, I can explain you something very interesting. ये WhatsApp पे काफ़ी चीज़ें आती हैं जो आपके मतलब की नहीं होती, बट पीछे मुझे WhatsApp पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आया। उसमें जो ट्रेनर हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि लाइफ में गुड टाइम्स और डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं। तो उन्होंने पार्टिसिपेंट्स से ये पूछा कि आपको गुड टाइम्स चाहिए या बैड टाइम्स चाहिए। तो सबका ऑब्वियस आंसर है कि यस, वी वांट गुड टाइम। Yeah. So now, what does the good time mean to you? Good time in life means happiness. Yeah. No challenges. I know when you have a good time, you have no challenges. You need love. You need success. You need harmony in your relationships. But अब ये बताइए कि आप भगवान को कब याद करते हैं? Bad times. When do you pray? Bad times. When do you have more faith? Bad times. When are you more disciplined? When are you more humble? जब आपकी बीवी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, तो how do you treat her? For granted? Now go back to things that make you feel good. Happiness. Happiness makes you lazy. If you are happy, you will not go to the gym. इंडिया में बड़ी ये तो नेशनल प्रॉब्लम है, बड़ा पेट होता है लोगों का, है ना? तो आप किसी से पूछें कि भाई साहब आपका पेट काफी बड़ा हो गया, तो दे काउंट इट एज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यार प्रॉस्पेरिटी है, सब बढ़िया है, जरूरत ही नहीं है जिम जाने की, है ना? खाते पीते घर के निशानी है हमारे
खाते पीते होने की. So, but what happens when you have a stomach upset? फिर आप सोच के खाते हो कि मुझे खिचड़ी खानी है आज. आपके सामने जितनी अच्छी चीज रखी होगी आप उसे खाओगे नहीं. सक्सेस गिव्स यू ईगो. जो आदमी सक्सेसफुल हो जाता है उसके अंदर ईगो आ जाती है. मनी मेक्स यू एरोगेंट. लव मेक्स यू पैम्पर्ड. जितना प्यार मिलेगा उतने हम पैम्पर्ड हो जाएंगे. फिर आपको लाइफ ने अपने तरीके से कोई चीज समझा दी तो समझा दी, नॉर्मल तरीके से आपको बातें नहीं समझ में आएंगी. ये मेरे साथ हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू. So you will notice a very, very interesting thing here, that when you are in good times, the worst comes out of you. When you are in bad times, the best comes out of you. Now, when you are in good times and the best comes out of you, there will never be a bad time. चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर बिजनेस पर्सपेक्टिव्स नोट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको ये चीजें याद रखनी है. जो मैंने आपको थ्योरी एंड रियलिटी बताई है, उसका बताने का पर्पस सिर्फ ये था कि हम में से कई लोग जो 40 प्लस हो चुके हैं, हमारी लाइफ का प्राइम जो है वो हमें पीछे छोड़ के जा चुका है ना. तो ये अपने दिल को दिलासा देने के लिए ख्याल बड़ा अच्छा लगता है कि 50 साल तक, दे से ना 40 is the new 30 and 30 is the new 20. But it's not like that. Once you're 40, most probably you will have kids, you will have liabilities. And if you look at the journey of an employee, it's a very interesting journey, and I'd like to share this example with you. I was very fortunate to attend the seminar of the author of Rich Dad Poor Dad. तो उन्होंने जो ये बहुत बड़ा 35,000 लोगों का एक इंडोर ऑडिटोरियम IG स्टेडियम दिल्ली में, it's an indoor stadium, there were 35,000 people and I was lucky to be a part of that seminar. So this gentleman, Robert Kiyosaki, he came and he used a treadmill on the podium पे लाके उन्होंने treadmill रख दी. And he was a very fit Japanese American. तो उन्होंने आके treadmill शुरू कर दी, कॉलर माइक पहना हुआ था और 35,000 लोग बैठे थे. तो उन्होंने एम्प्लॉय की जर्नी के बारे में बताया, which is what I want to share with you, and which is what is the motivation for all of us to move from employee to a business owner or to a self-employed category. But it does not mean that, देखो मेरे फादर भी आर्मी में थे and he has been an employee all his life and he has done well. All I'm saying is that if you have a streak of entrepreneurship, then you have to consider these things. So what he does is he starts walking on the treadmill and he says, he's narrating a situation and he's walking on the treadmill and he says कि आप जब कॉलेज से बाहर निकलते हो तो वो धीरे धीरे ट्रेडमिल चल रही है, वो चलते चलते बता रहे हैं कि आप कॉलेज से बाहर निकले, अब आप अपनी लाइफ की जर्नी पे चल पड़े हो. एंड थोड़ी देर बाद वो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं. इसे कि अब आपको जॉब मिल गई. तो जब आपको जॉब मिल गई तो आपने भागना शुरू कर दिया. थोड़ी देर बाद वो स्पीड को और बढ़ा देते हैं. इसे नाउ यू मीट द बॉय और द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स. तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, आप ज्यादा पैसे कमाते हो और सडनली क्या होता है, आपको रियलाइज होता है कि मेरी वाइफ भी वर्किंग है, मेरी जो गर्लफ्रेंड या मेरी फ्यूचर वाइफ है वो वर्किंग है. एंड तो आपको रियलाइज होता है कि 2 इनकम हो गई, तो आपकी ट्रेडमिल की स्पीड जो है वो और बढ़ जाती है. फिर आप क्या करते हो, फिर आप लेते हो घर जिसकी आप लेते हो लाइबिलिटीज, फिर आप लेते हो गाड़ी जिसकी लाइबिलिटीज होती हैं. एंड एक क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर आज तक नहीं पता लगा वो ये कि जो आपका बच्चा होता है, इज ही एन एसेट और अ लाइबिलिटी? You are one of those very few people who has answered it. If I ask myself whether I am an asset to my father or a liability, I stay in my father's house, so I consider myself to be a liability. So a child in most of the cases is a liability also. So one fine day, when the treadmill is very fast and you have 2 sources of income, you decide to have a child and your wife comes home and tells you that, darling, we are going to have a baby. आपको खुशी तो बहुत होती है, लेकिन आपको ये रियलाइज नहीं होता कि अब आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हो गई है आधी. बिकॉज 99% कंपनीज जो हैं वो मैटरनिटी में पे नहीं करती हैं या बेसिक पे देती हैं, प्राइवेट कंपनीज नहीं देती. सो देन यू हैव अ चाइल्ड बट यू आर वेरी एक्साइटेड. सो आप क्या करते हो, आप एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेते हो जिसमें आपको थोड़ा सा कंसल्टिंग असाइनमेंट्स मिलते हैं और आप 9 से 5 काम करने के अलावा आप 5 से 8 भी काम करते हो.
तो ट्रेडमिल की स्पीड इस दौरान बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. और one fine day when you are, when your wife is at home taking care of the child and you are running very fast, तो वो जेंटलमैन उस टाइम ये दिखाते हैं कि वो ट्रेडमिल से गिर जाते हैं. हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर, आर्टरी ब्लॉकेज, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस. एंड उस दौरान क्या होता है कि जो वो आदमी ट्रेडमिल से गिरा होता है, उसका बॉस कहता है एचआर को कि इस बंदे को रिप्लेस कर दो. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप अपनी लाइफ में कंट्रोल लेना चाहते हो तो आपको या तो एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करो, जो कि 5% लोग या 10% लोग कर सकते हैं. बाकी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी इनफैक्ट यू शुड डेफिनेटली लुक एट एंटरप्रेन्योरशिप एज ए बिग अपकमिंग थिंग, बिकॉज आइडिया तो किसी को भी आ सकता है ना. आइडिया कभी प्राइवेट लोगों को ज्यादा आता है और गवर्नमेंट लोगों को कम आता है, ऐसा तो नहीं होता है. सो मुझे ये लगता है कि उस आइडिया को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए आपको अपनी सोसाइटी के जो फ्लॉज हैं उसको समझना पड़ेगा, आपको अपने सरकार की पॉलिसीज समझनी पड़ेंगी, आपको अपना ज्योग्राफी और जो अपनी सोसाइटी की स्टडी है वो ज्यादा करनी पड़ेगी. एंड गवर्नमेंट दीज डेज आई वुड लाइक टू आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन अनाउंसिंग दैट government has taken so much of initiative that things are not like that. India is now actually shining. That's what I think. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो आते आते आएंगे ना. तो धीरे धीरे करके अच्छे दिन मुझे दिख रहा है कि आ रहे हैं और बिजनेसेस को बढ़ोतरी मिल रही है. और in fact today we are accompanied by a accomplished young man. He is only 28. He has made 2 Guinness World Records, and he has quit his job and he is now picked up a social enterprising cause of climate change. So Arvind is my friend and a professor, and he has picked up a cause of social entrepreneurship जिसमें आप social causes को address करते हो. इनकी cause है climatic changes. अगर आप note करेंगे तो गल्फ वॉर के बाद से ये होता आ रहा है कि आपके जो मौसम है वो आगे पीछे हो गए हैं. बरसातें जहां मई में शुरू हो जाती थी, अब सितंबर तक नहीं हुई हैं बरसातें. तो ये क्यों हो रहा है? ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स. एंड सो अरविंद इज नाउ अटेम्प्टिंग अ 3rd गिनीज बुक record where he's authoring a book on climatic changes and the effect of climate changes on human race, and he's attempting to cycle through the world. So he's an inspiration to many, and I would like to request you to go back home and think about it, that if you ever thought of doing a business, why didn't you do it? And if you want to do it now, why not? These obstacles are there, and these obstacles are all going to remain. But why you will do business? Very simple. जब आप लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट करने जाते हो तो आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल पूछने होते हैं, why and how. If you know why do you want to do it, how to do it is always very very simple and logical. हाउ में बहुत ज्यादा साइंस नहीं लगती है. अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, इट विल शो यू. बट व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट अ कंपनी, एंड व्हाई डू यू वांट टू डू बिजनेस, एंड व्हाई डू यू वांट टू क्विट योर जॉब, और व्हाई डू यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैन्स लाइफ. सो इनके आंसर आपको तभी मिलते हैं जब आप इस वाई का आंसर जान लेते हो. और जब आपके पास वाई का आंसर होता है तो हाउ का आंसर बहुत ईजी होता है. नाउ विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू. And I would like to request you to ask me questions, because उससे मुझे लगेगा कि शायद आपको मेरी बातें समझ में आएंगी. Before you start, this is my friend Arvind Mishra. He has made 2 Guinness records, and he's a professor, and he's attempting a 3rd Guinness record. He has been invited by Pakistan to talk to one of the biggest universities, and he's a TED speaker also. So I give the platform to Arvind. If you have any questions for him, you can ask him. Thank you so much. So, education is very close to me, and I believe that I'm very younger here, and you guys are very much experienced. So I have no right, telling you about education and all. But I've been to Pakistan and a couple of other universities, and I have interacted with the student. Being a youth of today, I try to understand the youth dynamics of today's youth, and that's very important to understand. What is youth dynamics of today's youth? Because as a parent, I believe that we tend to forget, or we have different perspectives. So, I have no offense, but your question started with, I want my kid
I want something for my kid. So question started with I want. It's not what he wants or she wants. So you know what, like Sidhu sir has told you, what you are trying to do is that you're wanting something for him, and then now your next step is going to impose your idea on him. So you know, when I go to classes, I ask my friends a question. It's a very common question. I ask them, who knows you best? Who knows you best? So it's a very simple question, but sometimes people, you know, they have answers like maybe my mummy knows me best. Yeah, of course. So you know your best because you are with yourself 24/7, and you know your strength, you know your weakness, you know everything. So your kid has to recognize his strength and his weakness, and he has to find the opportunity in his strengths. So failing is also very important. Let him fail, let him suffer, let him have the experiences of hard times, you know, hardships. It's very important. So I believe it's very very important. Letting him be is the most important thing that you can do, and that's the most powerful support that you can extend to him. Thank you. I thank, first of all, I thank all the centers, all the participants at all the respective nodal centers for being with us. And then last but not the least, I thank Raman sir and Arvind. Arvind sir. Manpur sir, bar will Yeah, that's all right. Okay, Arvind sir, for being with us. It was great to have you both over here, and I hope I will be keeping interacting with you, sir. Sure. रमन सर तो मेरे brothers हैं और यहीं पे हैं, और आपसे मैं Yeah, we'll share the contacts. I wish to be in touch with you. And thanks for all the participants, and to all the participants, we are breaking here for the tea. And exactly after 15 minutes, I request you 3:15 we will be back with the next session on Startup India initiatives by Government of India that will be taken by Ajay. Thank you. Thank you. Thank you. बुक ऑर्डर कर दी मेरा ब्रदर है